Hello students, welcome to English class. In today's English class, we are going to do a new chapter, that is chapter 8, Chips, on page number 73. You all are wondering, right, why this chapter is called as Chips? We'll see that. We'll get to know why this chapter is named Chips. Okay? And I'm sure you all love chips, right? Potato chips aap sabko pasand hai. Same here, I love potato chips. We'll see why this chapter is named as Chips. And kids, who is the author of this chapter? Who wrote this chapter? It's Deb Scott Lowrick. Okay. So in this chapter, you can see there is a small poor family. Okay. And they are in a country which is at war. Okay. Which is at war with another country. उनके पास खाने के लिए खाना नहीं है. They are starving. क्योंकि उनके country war पे है. ज़्यादा खाना नहीं मिलता है war के time पे. तो जितना ज़रूरत है उतना ही खाना मिलेगा, ज़्यादा खाना नहीं मिलेगा. सो दे वर स्टार्विंग एंड दे वर हंग्री. एक दिन क्या हुआ, इन द मॉर्निंग somebody knocked at their door. ओके, जिस घर में ये फैमिली रह रहा है, a poor family, somebody knocked at their door, and when the mother opened the door, she could see two soldiers were standing with a large sack, and they gave it to her and said, make chips by noon. ओके, एक बड़ा सा बैग उनके हाथ में था और उन्होंने ये बैग मदर को दिया एंड बोला कि चिप्स बना के रखना, दोपहर तक हम वापस आएंगे. बट अभी प्रॉब्लम क्या है कि इस फैमिली को पता ही नहीं है चिप्स का मतलब क्या है. दे डिडंट नो व्हाट वाज चिप्स. चिप्स कैसे बनाते हैं या कभी उन्होंने ये चिप्स के बारे में सुना ही नहीं है. ओके, तब ये मदर को बहुत टेंशन होने लगा. तो उस फैमिली में एक ग्रैंड मदर है, तो उन्होंने बोला कि तुम टेंशन मत लो, हम जैसे यूजुअली हम जैसे बनाते हैं आलू को, पोटैटोज को हम कैसे बनाते हैं, हम उसको पील करके बॉईल करते हैं, हम वैसे ही करेंगे. सो शी सजेस्टेड दैट दे विल पील एंड बॉईल दी पोटैटोज. ओके, तब बच्चे इस फैमिली में जो बच्चे हैं ना, 2 बच्चे हैं इस फैमिली में, वो बताएंगे कि इट इज़ नॉट दैट नाइस, मीन्स इतना टेस्टी नहीं रहेगा बस हम पोटैटोज को उबाल के दे देंगे. तो सो वी विल ऐड सम हर्ब्स मतलब थोड़ा बहुत मसाले और मशरूम्स वगैरह डालेंगे इसमें और टेस्टी बन जाएगा. ऐसे सजेस्ट करके ये लोग ये पोटैटोज को उबालते हैं, इसमें मशरूम डालते हैं, थोड़ा स्पाइस डालते हैं. एंड द सोल्जर्स कम बैक इन द आफ्टरनून. उन्होंने बोला था ना कि वो दोपहर में आएंगे. सो द सोल्जर्स केम बैक इन द आफ्टरनून एंड दे वर वेरी हंग्री. सो दे सैट ऑन द टेबल. सो टेबल पे बैठ के वो लोग खाने लगे. तब बहुत डिसअपॉइंट हो गए कि उनको चाहिए था चिप्स, और इस फैमिली ने क्या बनाया है, उन्होंने पोटैटोज को बॉईल करके बनाया है. वो देख के ये 2 सोल्जर्स थे, वो बहुत गुस्से में आ गए. दे वर वेरी एंग्री एंड दे गॉट अप एंड वेंट आउट. ओके, जस्ट इमेजिन, दे वर सो एंग्री दैट दे डिडंट इवन say anything. They just shouted and they got up and they went out. Okay, all the other family members, they were just waiting for the soldiers to leave because they were so hungry. उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं था बहुत दिनों से. तो अभी उनको क्या मिला है, गरम गरम उबला हुआ पोटैटोज मिला है with lot of herbs and mushrooms. So as soon as the soldiers left, they all ate the potatoes. Okay, and that was the best, a very tasty meal which they were having after a very long time. Okay student, this was the story in short. We will read page number 73, which is the first page today, and understand this chapter better. Okay, shall we start? Hope you all are on page number 73. Once upon a time, in a big faraway country, there lived a small family. The country was at war and there was very little food for the people. So the poor family went hungry. One day, early morning, 2 foreign soldiers, a part of the army who had occupied their country, knocked on their door. They pushed a sack into mother's hand and asked her to make them chips for their lunch. So what happened, kids? There was a big country which was very far away, and there lived a small poor family. Okay, I will tell you before that there are 5 people in this family. There are 2 kids, their mother and their grandparents, grandpa and grandma. Okay, 5 लोग हैं इस फैमिली में. और
जिस कंट्री में ये लोग रह रहे थे वहाँ पर वॉर हो रहा था, तो उनके लिए खाना नहीं मिलता था, एंड दे वे वेरी हंग्री फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। ओके, उनको ठीक से खाना खा के बहुत दिन हो गया था। ऐसे एक माहौल में वन डे अर्ली इन द मॉर्निंग टू फॉरेन सोल्जर्स मीन्स जो सोल्जर्स इनके कंट्री के नहीं है, इनके कंट्री जो वॉर कर रहे हैं ना, उस कंट्री के 2 सोल्जर्स आए थे एंड नॉक्ड एट द डोर। ओके, दरवाजे पे खटखटाया, एंड व्हेन द मदर ओपन द डोर दे पुश्ड अ सैक इनटू मदर्स हैंड। मीन्स पुश्ड अ सैक मीन्स फोर्सफुली देना। मदर नहीं चाह रहे थे कि वो सैक ले ले, बट सैक मीन्स अ बैग। मदर नहीं चाह रहे थे कि वो बैग ले ले, बट दे जस्ट फोर्सफुली गेव इट टू द मदर एंड सेड मेक चिप्स for their lunch. Okay, this is what the soldiers are saying. We will be back at 12 noon, said the dark-haired soldier. Have the chips ready by then. And with that, the soldiers turned around and headed off towards the neighboring farm. Okay, soldiers ने क्या बोला? We will be back at 12 noon. 12 बजे हम वापस आएंगे। ये किसने बोला? Dark-haired soldier. डार्क हेड मीन्स उनका हेयर का कलर डार्क था, मे बी समथिंग लाइक ब्लैक हेड सोल्जर। ही सेड दैट वी विल बी बैक एट 12 o'clock एंड हैव द चिप्स रेडी। चिप्स बना के रखना तब तक। एंड विद दैट द सोल्जर्स टर्न्ड, वो ऐसे घूम के, एंड हेडेड ऑफ मीन्स दे वॉकड अवे टुवर्ड्स द नेबरिंग फार्म। ओके, पड़ोसी के फार्म के तरफ वो लोग निकल गए। Okay, let's see what happens. Next para. By this time, the entire family had come scurrying downstairs to see what was happening. Okay, जब ये डोर पे किसी ने खटखटाया एंड कुछ आवाज़ सुनाई दिया, तो पूरे फैमिली, बाकी लोग थे ना फैमिली में, पहले मदर आके डोर ओपन किए, देन बाकी फैमिली मेम्बर्स जैसे 2 बच्चे हैं, ग्रैंडपा सब नीचे आए स्टेयर के नीचे, just to see क्या हो रहा था। Okay, what was happening? What's the meaning of scurrying? Scurrying means hurriedly. ठीक है, scurrying means ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स लेके जल्दी दौड़ के आना। Okay, what are chips? Mother asked them, but no one had ever heard of such a thing. सोल्जर्स ने तो बोल दिया कि चिप्स बना के रखो, पर उस फैमिली में किसी को नहीं पता कि चिप्स क्या होता है। सो द मदर इज आस्किंग व्हाट आर चिप्स, चिप्स क्या होता है, बट किसी को आंसर नहीं पता था। हाउ आर वी गोइंग टू मेक चिप्स, क्राइड मदर, वी डोंट इवन नो व्हाट दे आर। तो मदर को पूरा टेंशन हो रहा है कि चिप्स कैसे बनाएंगे जब हमें पता ही नहीं है कि चिप्स क्या है। ऐसे बोल के मदर को टेंशन हो रहा था। देन शुडंट वी ओपन द सैक फर्स्ट, द चिल्ड्रन पॉइंटेड आउट। तो बच्चे सोच रहे हैं हम अगर सैक मीन्स वो बैग जो सोल्जर्स ने दिया है, अगर हम वो ओपन करके देखेंगे विल गेट सम आइडिया उसमें क्या है और चिप्स क्या है, उसका कुछ आइडिया होगा। सो द किड्स आर आस्किंग, द चिल्ड्रन आर आस्किंग, शुडंट वी ओपन द सैक फर्स्ट। रिमेंबर स्टूडेंट्स, सैक का मतलब है बैग, ठीक है, गनी बैग जैसे बैग है। नेक्स्ट, Mother hurriedly opened up the sack to reveal big, muddy, white-fleshed, new potatoes. The family gasped in amazement. They had not seen so many potatoes since the beginning of the war. Okay? When the children suggested that they should open the bag and check what is inside, Mother opened the bag and what did they see? Reveal मतलब क्या देखा उन्होंने? They saw big, muddy, white-fleshed, new potatoes. What did they see? They saw potatoes in the bag, and the family gasped in amazement. They were very happy. They were amazed, surprised with happiness. They were surprised and happy to see these many potatoes. They have never seen so many potatoes. जब से वॉर शुरू हुआ है ना उनके कंट्री में, उन्होंने इतना ज़्यादा पोटैटोज देखा ही नहीं है, क्योंकि खाना ही नहीं मिलता है, कहाँ से देखेंगे इतना पोटैटोज, राइट? नाउ ग्रैंडमा स्पोक। उस फैमिली में जो एक ग्रैंडमा है ना, उन्होंने बोला, डोंट बी सिली, शी सेड, वी नो हाउ टू कुक पोटैटोज, वी विल पील एंड बॉयल देम फॉर द सोल्जर्स, देन वी विल मेक सूप फ्रॉम द पीलिंग्स फॉर आवरसेल्व्स। कम ऑन चिल्ड्रन, लेट्स बिगिन। सो ग्रैंडमा ऐसे बोलते हैं कि
डोंट बी सिली, ऐसे सिली मत बनो, हमें तो आता है पोटैटोज कैसे बनाना है। हम उसको पील करेंगे एंड उस पोटैटोज को बॉईल करेंगे और सोल्जर्स को दे देंगे। और जो पील्स है ना, जो इसके छिलके होते हैं, उसको बॉईल करके हम सूप बना लेंगे हमारे लिए, ठीक है। एंड शी इज आस्किंग द चिल्ड्रन टू कम एंड हेल्प। कम ऑन चिल्ड्रन, लेट्स बिगिन। ओके, सो प्लीज नोटिस हियर किड्स, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, सो दे आर टेकिंग द पील, जो पोटैटोज का छिलके हैं उसको लेके उसको उबाल के सूप बना के पियेंगे। ओके, दे वर दैट हंग्री। ओके, she gave each child a handful of potatoes to wash and peel. When that was done, she built a fire in the grate and hung a big cooking pot over the flames. Then she poured in fresh water and the chopped potatoes. The whole family sat around the open fire watching the water bubble and boil. So, what did the grandmother suggest? Grandmother suggested that जो जैसे वो लोग हमेशा पोटैटोज बनाते हैं ना, लाइक बॉइलिंग देम, दे विल डू द सेम थिंग फॉर द सोल्जर्स। एंड उन्होंने बच्चों को हेल्प के लिए बुलाया एंड शी गेव ईच चाइल्ड अ हैंडफुल ऑफ पोटैटोज। हर बच्चे, 2 बच्चे थे, दोनों के पास थोड़ा बहुत पोटैटोज दे दिया, तो बोल के कि वॉश करो और पील करो, वॉश इट एंड पील इट। एंड देन व्हेन द वॉशिंग एंड पीलिंग वाज डन, दे बिल्ट अ फायर इन द ग्रेट। ग्रेट का मतलब है फायर प्लेस, जहाँ पर आग लगाते हैं। ओके, यू मस्ट हैव सीन इन द मूवीज, पहले ज़माने में ना वो स्टव वगैरह नहीं था, सिलेंडर स्टव नहीं था, सो दे यूज टू हैव लाइव फायर एंड उसके ऊपर एक पॉट हैंग करते थे एंड उसमें खाना पकाते थे। इन द सेम वे दे बिल्ट अ फायर वुड वगैरह रख के फायर बिल्ड किए, फिर उसके ऊपर एक बड़ा सा कुकिंग पॉट में पानी लिए, फ्रेश पानी लिए, देन उसमें चॉप्ड पोटैटोज, कटा हुआ आलू डाल के फिर उन्होंने उबाला। एंड द होल फैमिली, ओके, ऑल 5 of them sat around the open fire watching the water bubble and boil. जब हम आलू उबालते हैं, आपने देखा होगा कि वाटर ऐसे बबल्स होते हैं, जब पानी उबलता है ना तो बबल्स आता है, तो पूरे फैमिली फायर के पास बैठ के वो उबलता हुआ पानी को देखते रहे। ओके, सो किड्स, वी विल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। देखते हैं क्या होगा। ओके, till then I want you to read this chapter, page number 73, and also finish the assignments. Okay, finish the assignment which I've given you. One assignment I've given you. Please finish that. Any doubts, feel free to ask me, message me. Okay, thank you so much for your time. Have a great day.